بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز استخارہ اور باقی نمازوں کے متعلق مسائل میں عرض کروں گا اور دعائیں عرض کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہر انسان کے کان تک اسلام پہنچانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ میرا ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ وہ کرمانی ٹی وی پہ جو ہے میں نشر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کو بھی آپ نے سننا ہے، سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مسائل بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، اس میں اسلامک مسائل ہیں، تو آپ نے تمام مسائلوں کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کی ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس وقت منادی پکارے گا، یعنی کہنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے، پھر اور لوگ ان کے لیے حساب کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، انبیاء علیہ السلام تو بغیر جو ہے حساب کے چلے جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کے متعلق یہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میرے دوستو عزیزو، آپ نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، اسی طرح عبادت کرنی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے کہ مرد مسلمان اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے جو بھلائی مانگے وہ اسے دے گا، اور یہ ہر رات میں ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے اس رات کو اس گھڑی میں جو ہے ضرور عبادت کرنی ہے، اور تاکہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، مومن ہو سکے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور سیاحت کا منانے والا اور گناہ سے روکنے والا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بدن سے بیماری دفع کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بدن میں جو ہے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رات میں اٹھے اور یہ دعا پڑھے، وہ دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فسبحان الذی والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ رب اغفر لی۔ اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ پھر یہ دعا کرے مقبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کی تعریف پہلے میں نے عرض کی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور پاک ہے۔ اللہ اور حمد ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بڑا ہے اور نہیں ہے گناہ سے پھرنا اور نہ نیکی کی طاقت مگر اللہ کے ساتھ۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی کما اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور یہ دعا پڑھتے۔ آپ نے بھی تہجد پڑھنی ہے، آپ نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ دعا کا دیتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्युमुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्ना वलकल हम्द अंता नूरुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्ना वलकल हम्दु अंता मालिकुस समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्ना वलकल हम्दु अंतल हक्कु व वअदकल हक्कु वलक़ाइका हक्कुन व क़ौलुका हक्कन हक्का वल जन्नतु हक्कुन नारु हक्का हक्कुन वसब्बियूना हक्कुन व मुहम्मदुन हक्कुन व सआतु हक्कुन अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका अमनतु व अलैका व तवक्कलतु व इलैका अनबतु व अनबतु व बिका खसमतु व इलैका हकमतु फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा आलनतु वमा अंता आलम बिही बिन्नी अंतल मुक़द्दम व अंतल मुअख्खर ला इलाहा इल्ला अंता व ला इलाहा गैरुक। अब मैं इस दुआ का आपकी खिदमत में तर्जमा कर देता हूँ। इलाही तेरे ही लिए हम्द है, सना है, तारीफ है। आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसमें है सबका कायम रखने वाला, और तेरे ही लिए हम्द है, सना है। आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें से है सबका तू नूर है, और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें से तू सबका बादशाह है, और तेरे ही लिए हम्द है। तू हक है और तेरा वादा हक है, सच है, और तुझसे मिलना क़यामत हक है, और जन्नत हक है, और दोज़ख हक है, और अंबिया हक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, और क़यामत हक है। आए अल्लाह तेरे लिए मैं इस्लाम लाया और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर तवक्कल किया और तेरी ही तरफ रजू की और तेरी ही मदद से खसूमत की और तेरी ही तरफ फैसला लाया। बस तू बख्श दे मेरे लिए वो गुनाह जो मैंने पहले किया और पीछे किया और छुपा कर किया और इलानिया किया, वो गुनाह जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है। तू आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटाने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अजल मतलब ये तो इस दुआ का तर्जमा हुआ। इसमें है कि तू ही अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, तेरी कोई औलाद नहीं। तू वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, तू पाक ज़ात है, तेरी कोई औलाद नहीं है। तो इसमें भी यही जो है दुआ में अल्फाज है। मेरे दोस्तों, मैं उन लोगों से याद करता हूँ जो लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। अगर अल्लाह का बेटा है तो फिर वो तो नमाज़ पढ़ता था, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहता था, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अगर अल्लाह का बेटा है तो नमाज़ किसकी पढ़ता था? हम तो नमाज़ पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमको बख्श दे, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, हमको बख्श दे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नमाज़ पढ़ता था? नमाज़ पढ़ने के लिए यही होता है कि हमको या अल्लाह बख्श दे। तो जब वो अल्लाह का बेटा है तो फिर नमाज़ किसकी पढ़ता था? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली किसके लिए कहता था, या अल्लाह मुझे बख्श दे? ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ईसाइयों से बात कर रहा हूँ, बरतानिया के ईसाइयों से, इसराइल के ईसाइयों से, दुनिया के ईसाइयों से। इसका मुझे जवाब दो कि वो किसके लिए इबादत करता था, किसके लिए नमाज़ पढ़ता था? अपनी मग़फ़िरत अल्लाह को कहता था, या अल्लाह मुझे बख्श दे। तो जन मोहतरम अक्ल के नाखन हैं, अगर इसका जवाब आपके पास है ईसाइयों तो मेरा नंबर नोट करें और मुझे बताएं, इसका जवाब दें। मैं उन पादरियों से कहता हूँ इसका जवाब दे जो मैं कह रहा हूँ। मेरा नंबर है 0300 77 39211। इस पर रब्ता करें और मुझे इसका जवाब ज़रूर देंगे। दुनिया के ईसाइयों से कहता हूँ कि मुझे इसका जवाब दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मग़फ़िरत की और नमाज क्यों पढ़ता था। अब मैं आपको नमाज इस्तिखारा के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँ कि नमाज इस्तिखारा वो होता है जो गैब की चीज़ बताता है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं नमाज इस्तिखारा का तरीका बताता हूँ। हदीस सही में है जिसको मुस्लिम ने सिवा जमात मुहद्दिसीन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमको तमाम अमूर में इस्तिखारा की तालीम फरमाते रसूलुल्लाह सल्लम। कुरान की सूरत तालीम फरमाते। हज़रत जाबिर कहते हैं, जब कोई किसी अमल का कसद करे तो वो 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े। वो दुआ पहले 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा की नियत करे, जो पूछना है अल्लाह से उसका नाम ले। दुआ मैं पढ़ के सुना देता हूँ और ये मुजर्रब है, सही है। हाजा कलाम सही हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका व अस्तकबिरुका बेकुदरतिका व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम।
फ़इन्नका वतक़दिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रु खैरुल ली फ़ी दीनी व मुआशी व आक़िबतिही अमरी औ क़ाल आजिल अमरी व आजिलिही फ़फ़क़ुद लहू ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रु शर्रुल ली फ़ी दीनी व मुआशी व आक़िबतु अमरी औ क़ाल आजिल अमरी व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वमरिफ़नी अनहु वक़्दुर लियल खैरु हैसु काना सुम्मा रादेनी बिही। इसका तर्जमा मैं आज कर देता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस्तिखारा करता हूँ तेरे इल्म के साथ और तेरी कुदरत के साथ, तलब कुदरतें करता हूँ और तुझसे तेरे फजल अज़ीम का सवाल करता हूँ, इसलिए कि तू कादिर है और मैं कादिर नहीं, और तू जानता है और मैं नहीं जानता। तो तू गैबू का जानने वाला है अल्लाह। अगर तेरे इल्म में ये है कि ये काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन और माशियत और इंजाम कार में, या फरमाया उस वक़्त और आइंदा में, तो उसको मेरे लिए मुकद्दर कर दे और आसान कर, फिर मेरे लिए इसमें बरकत दे। और अगर तू जानता है कि मेरे लिए ये काम बुरा है, मेरे दीन और माशियत और इंजाम कार में, या फरमाया उस वक़्त और आइंदा, तू उसको मुझसे फेर दे और मुझको इससे फेर, और मेरे लिए खैर को मुकर्रर फरमा जहाँ भी हो, फिर मुझे इससे राज़ी कर। इस दुआ के बाद अपनी हाजत जिक्र करे, खा बजाय हाजल अमरा के हाजत का नाम ले या उसके बाद। ये मसला मेरे दोस्तों दूर मुख्तार में मौजूद है। औकाला आजिले अमरी में औ शक्का रावी फुकहा फरमाते हैं कि जमा करे, यानी यूं कहे व आ के बातें अमरी व आजिले अमरी वाजिलत हज और के दौरान, या मिसाल के तौर पर हज और जिहाद और दीगर नेक कामों में नफ्स फेल के लिए इस्तिखारा नहीं हो सकता। हाँ, तअय्युन वक्त के लिए कर सकते हैं। तो मुस्तहब ये है कि इस दुआ के अव्वल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े, और फिर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। और बाद मुशाइख कराम फरमाते हैं कि पहली जो है रकत में रब्बकल यखलुकु मा यशाउ व यख्तारू व युलिनून तक, और दूसरी में वमा काना ले मोमिनिन वला मोमिनतिन आखिर आयत तक भी पढ़े। ये मसला दूर मुख्तार में मौजूद है जो मैंने अर्ज किया है। बेहतर यह है कि 7 बार इस्तिखारा करे, कि एक हदीस में है कि ऐ अंस, जब तू किसी काम का कसद करे तो आपने रब से इसमें 7 बार इस्तिखारा कर, फिर नज़र कर तेरे दिल में क्या गुजरा है, बेशक उसी में खैर है। और बाद मुशाक से मनकूल है कि दुआए मज़कूरा पढ़ कर बातहारत किबला रोज़ सो रहे, अगर खाम में सफ़ेदी या सब्ज़ी देखे तो वो काम बेहतर है, और स्याही या सुर्खी देखे तो बुरा है, उससे बच्चे। ये मसला दूर मुख्तार किताब में मौजूद है जो फ़िक़्ह किया है। इस्तिखारा का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ राय पूरी जम न चुकी हो। अज़ीज़ मुस्लिमीन, इंशाअल्लाह फिर मैं सलात व तस्बीह के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।